ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦर्शन कर रहे हैं, खास तौर पे पंजाब ते हरियाणा दे विच? गौरव जी, ये ऐसी कहानी है जैसे घर में कोई छोटी बहू ने खीर बनाई हो और बड़ी बहू ये कहते इसमें तो किसारी गिर गई थी, मैंने इसको निकालते देखा, इसको खाना नहीं। यही काम कांग्रेस पार्टी ने, कैप्टन अमरिंदर ने, और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और केंद्र में भी कांग्रेस के नेताओं ने इसी प्रकार का काम किया है। ये विचार बदलू लोग हैं। ऐसा ही एक कानून अगर आप देखेंगे तो 2017 में कैप्टन साहब ने अपने पंजाब में पास कर रखा है। ऐसी ही बात आपने अजय माकन जी के मुंह से सुनी होगी, जो राहुल जी इस बात में बैठे हुए हैं और वो अपना घोषणा पत्र बता रहे हैं। और ऐसी ही कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें जो कृषि वाला अध्याय है 7 नंबर, उसमें 11वें क्लोज में यही सब बातें लिखी हुई हैं। और हमारे हुड्डा साहब जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनके लीडरशिप में एक कमेटी बनी थी कई मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, जिसमें बादल साहब भी थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य भी थे उस समय, और जो है नीतीश कुमार भी थे। और हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट उसको कहा जाता है, उसके 20 नंबर पेज पर 5.13 करके जो पैराग्राफ है, यही सारी बातें लिखी है। अब कांग्रेस पार्टी अपने विचार बदलू होकर और बहकाने का काम कर रही है, किसान भाइयों को भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जिसका ये कारण है। हमने ये नहीं सोचा था कि ये खीर में किसारी बिता देंगे, ये इस प्रकार से बहकाने का काम करेंगे। इसलिए ये उनके फैलाए हुए भ्रम के कारण से, और वो खुद भी अब तो आगे हैं, झंडे लेके अपने छुपा भी नहीं रहे, खुद कांग्रेसी अपने विचार बदल के इन चीजों का विरोध कर रहे हैं, पहले जिनके वो समर्थक थे, जिनके पक्ष में बोलते थे। ठीक है धनखड़ साहब, मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। देखिए सवाल इस बीच ये भी है कि अगर किसी और ने भी इसके ऊपर अपनी मोहर लगाई या पहले बात की या आपके किसी के चुनाव घोषणा पत्र में था, तो उसको भी किसान तो ठीक नहीं कह रहे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस गुमराह कर रही है या विरोधी गुमराह कर रहे हैं किसान को। लेकिन सवाल तो यह भी है कि सर आपके पास भी तो सीधी स्टेज है, आप समझाइए किसानों को। आपकी बात नहीं सुनते, आपको तो वोट डालकर सरकार में बिठा दिया उन्होंने, तो क्या अब आपकी बात नहीं सुनते किसान? कि अगर वो गुमराह कर रहे हैं तो आप समझा दीजिए उनको, किसानों को, उनके जो अंदेशे हैं, खदशे हैं, उनको दूर कर दीजिए। ऐसा गौरव जी, बादल सूरज को कुछ समय के लिए ढक सकते हैं, 2-4 दिन ढक सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं ढक सकते। अभी मंडियों में खरीद होएगी, एक एक दाने की खरीद होएगी,
अगली फसल का एमएसपी घोषित हो गया है और इस नाते से जितने भी झूठ बोल रहे हैं उसकी पोल खुल जाएगी। एक एक दाना जो है धान का खरीदा जाएगा, हरियाणा में हम बाजरे की भी खरीद करते हैं उसका भी खरीदा जाएगा और इसलिए कोई भी कठिनाई किसान भाइयों को आने वाली नहीं है और जो झूठ की राजनीति कर रहे हैं उनकी पोल खुल जाएगी। ठीक है सर, देखिए पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या, एक्सपर्ट हैं वो भी क्या कह रहे हैं, वो हर कोई ये कह रहा है कि पहले साल दूसरे साल हो सकता है कि जबरदस्त इंपैक्ट देखने को मिले पॉजिटिव तरीके से कि किसानों को बड़ा फायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में आप आज से 5 साल 10 साल बाद सोचिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं उस पॉइंट के ऊपर आऊंगा, लेकिन मैं अगर टेक्निकलिटी तौर के ऊपर थोड़ा सा गौरव शुक्ला जी, गौरव शुक्ला जी, जी चलिए आप कंप्लीट। गौरव शुक्ला जी, अभी गौरव शुक्ला जी 4 साल तो हमारी सरकार है दिल्ली में और हरियाणा में भी कई राज्यों में, 8 फसलें तो हम ही खरीदेंगे और दमदारी से खरीदेंगे और अगर हम नहीं रहे तो ये जो भाषण करने वाले हैं ये खरीदार बन जाना, ये बहकाने का काम काय को कर रहे हैं। 8 फसलें तो खरीदने की जिम्मेवारी हमारी ही है, इसलिए इनके सारे जो झूठ की पोल खुल जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए ये कानून तो जो थोड़े से किसान हमारे किसान उत्पादन समूह से जुड़े हुए हैं, प्रगतिशील किसान हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, हमने उनके लिए बनाए हैं, उनके संरक्षण सरलीकरण और संवर्धन के लिए बनाए हैं। इसका मंडी सिस्टम से एमएसपी से कोई संबंध नहीं है। एमएसपी ऐसे ही चलेगा, मंडी सिस्टम ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही एमएसपी में बढ़ोतरी होती रहेगी और ऐसे ही खरीद होती रहेगी जैसे पहले होती रही है। ये तो ऐसे है कि एक किसान के 2 पुत्र, एक प्रगतिशील किसान हो गया और एक पुराना खाद्यान्न उगाता है मंडी में बेचता है, अपना झुन्ना है, कनक है, तो वो जब पिताजी ने कहा भी ठीक है तू जलंधर में एक दुकान खोल ले और अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग करने लग जा, उसकी दुकान खुलने से दूसरे मंडी वाले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मंडी वाले को बहका दिया कि अगर इसकी दुकान वहां खुल गई तो तेरी मंडी बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल झूठा प्रोपगेंडा है। मंडियां वैसे ही चलेंगी, एमएसपी वैसे ही चलेगा। कल रबी का एमएसपी घोषित हो गया है, अक्टूबर महीना पूरा खरीद का महीना है, अब अक्टूबर में दिन ही कितने रह गए। ठीक है, तो ये जब सारी खरीद होगी तो ऐसे झूठ फैलाकर आंदोलन करने वालों की पोल खुलेगी। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटीज में जाना चाहता हूं अब इस पूरे ऑर्डिनेंस को लेकर, इन बिलों को लेकर जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुके हैं। देखिए विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष एमएसपी को लेकर सवाल उठाता है और यह भी कहता है कि एमएसपी से कम पर खरीद होगी आने वाले समय में, अपनी मनमर्जी करेंगे बड़े कॉर्पोरेट्स। सवाल अब यही है, विरोधी भी उठा रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि एमएसपी नहीं जा रही या फिर एमएसपी पर ही खरीदारी होगी तो फिर इन बिल्स में इन चीजों को मेंशन करने में दिक्कत क्या थी। अगर आप मेंशन कर देते कि एमएसपी पर एमएसपी जारी रहेगी और अगर एमएसपी से नीचे कोई फसल खरीदता है तो वो आपराधिक मामला होगा, अगर ऐसी चीजें मेंशन कर दी जाती तो उसमें दिक्कत क्या थी। आप सबको संतुष्ट कीजिए ना, केंद्र की सरकार है, सब लोगों के लिए, अगर किसी के मन में कोई अंदेशा है तो उसको दूर कीजिए सर। गौरव शुक्ला जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमएसपी पर जो खरीद होती है वो 78 करोड़ क्विंटल धान और गेहूं की होती है, 44 करोड़ क्विंटल धान खरीदा जाता है, 34 करोड़ क्विंटल गेहूं खरीदा जाता है और इसको जो है राशन के दुकानों पर वितरित किया जाता है। सरकार उतना ही खरीदती है जितना राशन की दुकानों पर वितरित किया जाता है और दलहन तिलहन को पीएसएस स्कीम के तहत, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत 25% से लेकर 50% तक खरीदा जाता है, जिसमें राज्य सरकारें जो अपील करती हैं वो खरीदती हैं और ये इतने की जो खरीद होती है उतने की खरीद जो की त्यों जारी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सीएसीपी के जो कानून है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वो ज्यों का त्यों है। एपीएमसी एक्ट ज्यों का त्यों लागू होगा, केवल एक ही परिवर्तन किया गया है कि मंडी से बाहर भी खरीद फरोख्त हो सकती है, जो खेत से हो सकती है, खलियान से हो सकती है, किसान के घर से हो सकती है, किसान उत्पादक समूह सीधा बेच सकते हैं, उन पर मार्केट फीस नहीं लगेगी, इसलिए वो सिस्टम पैरेलल ज्यों का त्यों चलेगा। ये सिस्टम एक नया संरक्षित करने के लिए, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो मेरे यहाँ 82,000 किसान उत्पादक समूह से संघ से जुड़े हुए हैं और 25,000 प्रगतिशील किसान हैं। अगर वो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उनके संरक्षण के लिए, सरलीकरण के लिए, संवर्धन के लिए कानून लाए हैं। मंडी वाले किसानों को, जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मंडियां वैसे ही चलने वाली हैं और वो खरीद वैसे ही होने वाली है और उसके नियमावली में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये पैरेलल सिस्टम है। ठीक है जी
चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा। हम कोशिश करेंगे कि कुछ किसानों से भी उनके सवाल ले पाए। सीधा रुख करता हूं बठिंडा का, मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ हैं सूरज भान। सूरज, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। सूरज, ओवर टू यू। बिल्कुल जाहिर तौर पर किसानों के दिल के बहुत सारे सवाल ने। इन्होंने सवालों टटोलन की कोशिश न्यूज़ 18 करे तो इसके लाइव से जवाब भी लवांगे। खेती ऑर्डीनेंस बिल लैके जिमींदारों के या किसानों के मन की सवाल ने, जिन्होंने सवालों का जवाब आप मंत्रियों तो या सरकार तो ले सकें। अपना मेन सवाल यही है जी, जो खेतीबाड़ी सैक्टर है पिछले 10 सालों तो एक दहाके तो या डेढ़ दहाके तो डिकलाइन जा रहा है, डिगदा जा रहा है। इसका मिकदार सबसिडियां ते तां खेतीबाड़ी खड़ी करने का सोचा सी इन्होंने, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਡੇ ਸਖਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ? ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਰਮਾ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਦਾ 5710 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ 4500 ਨੂੰ, ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ। ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਥੋਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਓਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਅੱਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੱਲ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫਾਹੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਥਰੂ। सूरज, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वापस आऊंगा। सूरज, मैं एक बार सवालों के नाल जवाब लेंदा रहा। ठीक है सूरज, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वापस आऊंगा। धनखड़ साहब, आप तक आवाज पहुंची होगी उम्मीद करता हूं। देखिए, सबसे बड़ा अंदेशा किसानों का क्या है कि आप एमएसपी तय करते हैं। इस समय एक गेहूं छोड़ दीजिए, एक धान को देखिए, दो ही खरीदारी होती है कि सरकार की तरफ से जो एमएसपी के ऊपर हो रही है। नरमा यानी कि कॉटन है, ये बठिंडा के किसान थे, वो पूरा कॉटन बेल्ट है पंजाब की, वो कह रहे हैं कि 5500 से ज्यादा रेट है, 5700 के आसपास, और 4500 रुपए खरीद की जा रही है। और ये गेहूं के साथ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? ये धान के साथ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? ये और फसलों के साथ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? ये तो ओपन मंडी वाला ही बात होगी ना सर, कि जो ऑलरेडी आपने तय किए हैं रेट, उसके ऊपर भी किसानों की फसल नहीं बिक रही। धनखड़ साहब। गौरव शुक्ला जी, इसमें अलग अलग फसल के अलग अलग खरीद के पैटर्न हैं। एक दिन में सारा सीन बदलेगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गेहूं की खरीद और धान की खरीद पंजाब और हरियाणा में एक एक दाने की होती है। दूसरी बात, जो तिलहन दलहन हैं उनकी खरीद पीएसएस स्कीम के तहत होती है, जिसको राज्य सरकार आगे बढ़ाती है। 25% से 50% तक सरकार खरीदती है, जिसके बाजार में दाम अच्छे हो जाएं। और कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया CCI जो है वो कपास की खरीद करती है। कैप्टन साहब अगर आमंत्रित करते हैं CCI को तो निश्चित रूप से पंजाब में खरीदेगी, उन्होंने बुलाना चाहिए, और CCI इस काम को करती है। ये राज्य सरकार की अपनी परिश्रम पर है। कुछ चीजें केंद्र सरकार डायरेक्ट खरीदती है अपने राशन प्रणाली के सिस्टम के लिए, जिसमें गेहूं और धान है, लेकिन बाकी चीजें जो खरीदी जाती हैं वो राज्य सरकारों के इनिशिएटिव पर खरीदी जाती हैं, और राज्य सरकारें पहल करके केंद्र सरकार से जो सहयोग मिलता है वो लेवें। मैं चाहूंगा कि कैप्टन धर्मेंद्र जी, गन्ने का भाव भी वो पंजाब में कम दे रहे हैं, 310 रुपए दे रहे हैं, हम 340 रुपए दे रहे हैं। वो किसानों को मुआवजा भी कम दे रहे हैं, हम 12,000 रुपए पर एकड़ दे रहे हैं, वो 8,000 रुपए पर एकड़ दे रहे हैं। फसल बीमा भी उन्होंने लागू नहीं किया, जबकि हमारे किसानों को 2600 करोड़ मिल गया है। तो थोड़ी किसानों की पैरवी ढंग नाल करें और उत्थे इसकी खरीद कराएं। जो CCI है वो इसकी खरीद करती है, और उस नाते से ये गैप किसानों को जो है वो दे सकते हैं। नहीं तो हमने अपने राज्य में
हमने अपने राज्य में कुछ देखिए जो सिस्टम है तो वो है ना गौरव शुक्ला जी, आज मैं कहूं कि ये सिस्टम बदल गया, ऐसा नहीं है। पहले वाला सिस्टम ज्यों का त्यों चलेगा, उसमें हम कोई बदल नहीं कर रहे। केवल 3 विधेयक इसलिए आए हैं कि जो प्रगतिशील और किसान उत्पादक संघ जैसे जो काम कर रहे हैं, जो अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो कर ले। इन्होंने क्या किया, भ्रम फैला दिया कि पहले वाला बदल जाएगा। पहले वाला बदलना नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहेगा। एमएसपी पर खरीद ऐसे ही होती रहेगी, मंडियां ऐसी ही चलती रहेंगी, किसानों की बढ़त एमएसपी की ऐसे ही होती रहेगी। यही मुख्य बात है। ये दूसरी बातें तो ये केवल मैं छोटा सा सवाल करूं, मुझे उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना। धनखड़ साहब देखिए, आप एमएसपी को लेकर कह रहे हैं, अब कॉटन का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। आप किसानों को बहुत सारी चीजें समझाइए कि इसमें पंजाब सरकार का कसूर है, इसमें केंद्र ने ये किया है, इसमें इनका दोष है। देखिए किसान को इससे कोई मतलब नहीं है ना सर, उनको तो उनकी एमएसपी मिलनी चाहिए। अब कल को गेहूं के साथ, कनक के साथ ऐसा होना शुरू हो गया, उसके बाद केंद्र की सरकार कुछ बोलेगी, स्टेट की गवर्नमेंट कुछ बोलेगी, नुकसान किसान का हो रहा होगा, फिर फंस जाएगा वो। देखिए गौरव जी, ऐसा तो समझना आपको भी पड़ेगा। मैं कृषि मंत्री रहा हूं हरियाणा का, मुझे भी समझना पड़ा है। बिना समझे चीजें नहीं चलेंगी। राज्य सरकारें अगर अपना काम ठीक से नहीं करेंगी तो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो किसानों को वो पूरा न्याय नहीं दिला पाएंगी। अगर मैं पीएसएस स्कीम के तहत अपनी सरसों नहीं खरीदूंगा तो केंद्र सरकार डायरेक्ट आने वाली नहीं है, मुझे अनुमति लेनी पड़ेगी। और मैं एक एक दाना खरीदता हूं यहाँ पर, मोटा अनाज नहीं, हम बाजरा खुद अपने लिए खरीदते हैं और हम उसके लिए आगे बढ़ के आते हैं। अगर ये राज्यों में अच्छे से लागू होना है तो राज्य सरकारें अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। राज्य सरकारों को अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। गन्ने का दाम हम बढ़ाते हैं, वो हमने अपनी जिम्मेवारी बढ़ानी पड़ेगी। अगर कैप्टन साहब नहीं बढ़ाते हैं तो उनकी कमजोरी है। जो लोग काम, मुआवजा हम देते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का 12,000 हमने किया है, कैप्टन साहब नहीं करेंगे तो उसमें मोदी जी नहीं कर सकते। कुछ राज्य सरकारों की कमियां हैं, वो भी उन्होंने लेनी पड़ेंगी अपने जिम्मे पे कि राज्य सरकार अच्छा नहीं कर रही तो वो भी किसानों के प्रति जवाबदेह हैं।